Amna, Rishita, Maryam. See, Amna and Okay. Rishita, in last lecture, we saw the addition of hydrogen halide, right? So I'm giving you guys a question. आप लोग दोनों इसको कीजिए and then send me the answer. What will be the product? You have to make दो products बनेंगे, दोनों बनाना है आपको, है ना? And then you have to identify which one is the major. Send your answers on WhatsApp.
Shita, Shita, and Amna, are you having difficulty? No, sir, I'm sending it to you. अच्छा, अच्छा. Yes, very good, Rashita. That is correct. See you guys. Mariam, you can also start taking notes from now. Okay. Yes, See, sir. when you have this type of structure, so you identify having double bond, and that's the only thing there. That's the only part where the reaction would occur. So we have this carbon atom which has a double bond, and then we have this carbon atom which has double bond. Okay. So now since both of right, I hope you can see the blue carbon is attached with CH3 and the red carbon is not attached with CH3. So obviously these two carbons are different. That means we'll get two different products. What you need to do is you need to make everything as it is except the double bond. Okay. And then add the Br. पहले आप blue वाले में add कर लीजिए Br like this. And the other product will be everything as it is except the CH3, sorry, except the double bond. CH3 will be also as it is except the double bond. And then in second product will be when Br is added on the red carbon atom. Got it, Mariam? How to draw the Yes, sir. products? Make sense? Yes or no? Yes, sir. Okay. Now this hydrogen atom will be attached to this carbon atom here, and the hydrogen atom will be attached to this carbon atom here. But in bond line structure, since we don't show the hydrogen, so I'm ignoring the hydrogen right now. We will focus on the bromine. But आपको अगर पूरा structure दे दिया जाए ना CH3 CH2 ऐसे करके, then you have to also show the addition of hydrogen in that. Okay. But what I would suggest is when if you get CH3 CH2 type of structure, convert it to bond line and then do the question. That will be much easier for you guys. Okay. So as you can see here, here we are having two products. Now what you need to do, you need to identify the carbon which is having bromine. So this is the carbon having bromine, and then you try, and then you calculate the degree of this carbon atom. So this carbon is attached to one carbon. So this is 3 degree. If I calculate the degree of this carbon atom is only attached with one carbon and two carbon. So it is 2 degree. So जो ज़्यादा degree वाला होगा, that will be major. And this will be minor. Got this association, guys? Especially Mariam, you got this? Yes, sir. Okay. Now this is also given by a Markovnikov rule. Okay. So once you draw this, please write Markovnikov's rule. So Markovnikov's rule, it says when unsymmetrical alkene. Unsymmetrical alkene का मतलब the alkene which has different groups on the either side of double bond. डबल बॉन्ड को आप काटेंगे ऐसे तो इस साइड और उस साइड दोनों आपको अलग अलग alkyl groups मिलेंगे. When unsymmetrical alkene is treated with unsymmetrical reagent, unsymmetrical reagent,
then the negative part of the reagent attaches to that carbon which has less number of hydrogens. Number of hydrogens, ठीक है. Now I especially did not deal with this part कि आप लोग less number of hydrogen calculate कीजिए, उसके बाद फिर product आएगा. I thought that easy way of doing this major और minor निकालने के लिए ये major product के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना. It will be कि आप पहले दोनों product बना लीजिए, उसके बाद you just look at the degree of the carbon. But अब हम इसको explain करने के, you're at the point in which I have to explain this. It is saying when unsymmetrical alkene is treated with unsymmetrical reagent, then the negative part of the reagent. अब अगर HBr में आप देखें, so HBr, Br is more electronegative, so this will be delta negative and this will be delta positive. So obviously, Br is what? The negative part. Attaches to that carbon which has less number of hydrogen. अच्छा, ये carbon कौन सा? The doubly bonded carbon. Alkene वाला carbon. Alkene की बात हो रही है ना, so you will look at the doubly bonded. So here we have blue and red. So this blue, it has 0 hydrogens, as you can see. Yes or no, please tell me, guys. Because it already has 4 bonds. Correct? Hai? Yes. And this red one will have 1 hydrogen. Make sense? Yes. है ना. तो अब according to the Markovnikov rule, the Br should attach on which has lesser number of hydrogen, which has less number, blue वाला. और I think वही हुआ है, that you have got the major product. Make sense? Yes or no, please tell me, guys. Yes. Yes, sir. ठीक है, चलिए please write this down. Raise your hand once you're done. Shweta, waiting for you. Okay. Right, next. Peroxide effect. Okay, so what is peroxide effect? Please write. In the presence of peroxide, in the presence of peroxide, the Br attaches to that carbon which has more number of hydrogens. Which has more number of hydrogens. ठीक है. अब as you can see, it is completely opposite of the Markovnikov rule. तो इसको एक और बोलते हैं, इसको anti Markovnikov rule भी बोला जाता है. Anti Markovnikov rule. Anti Markovnikov. एक और नाम है खराश इफेक्ट. ठीक है, खराश इफेक्ट. Now, what does it mean? It means that, for example, अब आपके पास, if you have this type of alkene and you are adding HBr in dark, that means in dark का मतलब आपके पास यहाँ पे कोई peroxide वगैरह नहीं है ना. And if you are adding HBr in the presence of helper, helper याद है आप लोगों को? Do you guys remember what is helper? Helper.
हेल्पर याद है कि नहीं याद है? नहीं याद किसी को? मतलब ये वर्ड भी सुना नहीं है, मतलब वर्ड सुना सुना लग रहा है या वर्ड भी सुना नहीं लग रहा है? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वर्ड सुना हुआ है, हेल्पर, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, peroxide एंड रेडिकल। नहीं, दीज आर फ्री रेडिकल जनरेटर्स ना, ये फ्री रेडिकल जनरेटर, दीज जनरेट फ्री रेडिकल। अगर ये होते तो होमोलिटिक क्लीवेज होता है, याद है? होमोलिटिक फिशन के लिए होता है। नहीं याद आया? अभी भी नहीं याद आया? ओ माय गॉड गाइस, फिर आप लोग रिवाइज किया करें, ठीक है? डार्क, देन द मेजर प्रोडक्ट इज दिस वन, ठीक है? एज यू कैन सी यहाँ पे आपके पास वन हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपके पास टू हाइड्रोजन है, तो बी आर विल अटैच ऑन द लेसर हाइड्रोजन इन डार्क। और जब पेरोक्साइड होगा ना, एनी ऑफ दीज, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट या पेरोक्साइड, then it will attach on the more carbon, one hydrogen. Write this down. Raise your hand if you're done, guys. Just waiting for Rashita now. ठीक है. Next reaction is ozonolysis. ये आई थिंक फोर्थ रिएक्शन होगा. ओजोनोलिसिस, ठीक है? ओजोनोलिसिस में क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहले समझिए रिएक्शन आपको करना कैसे. Reaction will be of alkene, C double bond C. This will be having some groups attached to it. You don't have to worry about those groups. The reagent is, the first step is ozone, O3. In the second step, we have to add zinc in the presence of water, zinc H2O. क्या होगा? You have to break this ऐसे, ठीक है? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कैसे. कार्बन, ये बॉन्ड्स ऐसे ही, ये डबल बॉन्ड ऐसे हो गया, कार्बन ये डबल बॉन्ड ऐसे, और दीज बॉन्ड्स आर एज इट इज, मेक सेंस? और यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, सो you'll get two compounds, you'll get two carbon which is having double bond oxygen. इस तरह से कैसे करना है, बात समझ में आ गई? yes or no please tell me guys, how to make the product. हो जाएगा. see you have to focus on the double bond, ठीक है? देखिए, see here guys, for example if you have something like this, ठीक है, and you have a double bond here, fine, you have a double bond here, and वही सारे रिएजेंट आपके पास ही है ओजोनोलिसिस वाले, ठीक है? व्हाट यू विल डू, यू विल ब्रेक दिस बॉन्ड ऐसे, ठीक? देखिए कैसे करना है. यू विल राइट एज इट इज, ये टूट गया और यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस डबल बॉन्ड ऐसे दिया, एंड देन हियर बिलो यू हैव वन कार्बन, और इस तरह से, एंड यू हैव डबल बॉन्ड. बस समझ में आ रही है? मेक सेंस? सोनो प्लीज टेल मी गाइस. यस सर। Yes. Yes. ठीक है. अच्छा देखिए, अगर आपके पास कुछ इस तरह से आ जाए तो क्या कीजिएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, O3, ZnH2O, तो क्या कीजिएगा? CH2 डबल बॉन्ड O प्लस डबल बॉन्ड प्लस ऑक्सीजन, ओ डबल बॉन्ड CH2। बस दैट्स इट. और ये क्या है? कैन यू नेम दिस कंपाउंड? कैन यू नेम दिस कंपाउंड? बोथ ऑफ दीज आर सेम, इतना तो समझ में आ रहा है आपको? इतना समझ में आ रहा है ना, बोथ ऑफ दीज आर सेम, ये दोनों, यस सर। है ना? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं आपके पास, राइट? तो क्या नाम होगा इसका?
1 कार्बन एटम ना, तो मैथ methanol, मेथेनल methanol. मेथेनल है ना, मेथेनल, मीथेनल या मेथेनल जो बोलिए। ठीक है, प्लीज कॉपी दिस डाउन। Raise your hand once you are done. Waiting for Amna and Khadija. Just waiting for Khadija now. Now all of these are the hand skills. ठीक है, ये याद रखने वाली चीजें नहीं है, करने वाली चीजें हैं. So whenever you are revising, you revise with a pen and paper. Otherwise, it will be of no use. Like I am speaking bluntly, आपके वो बुक को खोल के पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा. You have to pick up a pen and paper, और you have, अगर आप प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो फिर आप एग्जाम में भी नहीं बना पाएंगे. ठीक है, सो जस्ट मेक श्योर वेन एवर यू आर रिवाइजिंग, आप अगर अभी भी पढ़ रहे हैं एंड इफ यू आर नॉट राइटिंग द नोट्स, इट विल बी ऑफ नो यूज. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज अ हैंड स्किल, आपको बनाना पड़ेगा. ठीक है, खदीजा आर यू देयर? सीम्स खदीजा इज नॉट हियर. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, वन थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड इज दैट दोनों तरह के सवाल आते हैं आपके पास. ठीक है, इन दिस टॉपिक यू विल हैव बोथ द क्वेश्चंस. आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनाने के लिए कहा जाएगा, एंड देन दे विल, एक तो ये रिएक्टेंट दे दिया, क्या ओजोनोलिसिस होगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा ये बताइए. दूसरा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी आपको बनाने के लिए पूछा जाएगा. ठीक है, दिस विल बी आल्सो आस्क्ड, यू हैव बीन गिवन द प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल व्हाट विल बी द एल्कीन, व्हाट विल बी द एल्कीन व्हिच गिव्स फॉर्मल्डिहाइड, बोलते हैं इसको. ठीक है ना, फॉर्मल्डिहाइड ऑन ओजोनोलिसिस, या मीथेनॉल ऑन ओजोनोलिसिस. वी हैव राइट ईथेन विल बी दैट एल्कीन. आपको बोल दिया एल्कीन दिया गया, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑन ओजोनोलिसिस. तो दोनों तरह के सवाल हम लोग देखते हैं, एंड देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट. Here, पहले आपका एल्कीन से ओजोनोलिसिस कराते हैं, एंड देन वी विल लुक एट द प्रोडक्ट्स. ठीक है, नाउ अब आपके पास एक जो स्किल दूसरी होनी चाहिए मौजूद, दैट इज हाउ टू राइट द स्ट्रक्चर इफ यू हैव बीन गिवन द नेम. राइट द आईयूपैक, अभी इसका आईयूपैक, इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाना है. दे आर सेइंग राइट द आईयूपैक नेम obtained by the ozonolysis of following compound. So we'll start with pent2ene. Now when you have to move, when you have to go from name to structure, then the first thing that you have to do is to identify the parent. Parent chain क्या है वो बताइए. What is the parent chain, this first structure? What's the parent chain, guys? Pen. Pent. That means how many? नहीं, pent है बस. Pent. That this is Five. pent. What?
5 carbon atoms, right? 1, 2, 3, 4, and 5. Now you know 1, 2, 3. You can do the numbering anyway. No, doesn't matter. ठीक है. अभी आपके पास parent chain है and the double bond is in the second carbon. So I hope you can make the double bond here. इतना आ जाएगा ये सोनो पीस में. अच्छा, अब 2 है तो 2 और 1 के बीच में नहीं होगा, 2 और 3 के बीच में होगा. आई होप यू रिमेंबर दैट डबल बॉन्ड का नंबरिंग जो होता है दैट इज विद द कार्बन विच इज हैविंग लेसर नंबर ना. 2 और 3 के बीच में अगर बॉन्ड है देन यू विल टेक 2 एज द नंबर टू लोकेट द डबल बॉन्ड. याद आया? Yes. मेक सेंस? ये सोनो पीस में गाइस. ठीक है, बना देंगे इसका प्रोडक्ट. बताइए. हो जाएगा ऋषिता, आमना, खदीजा, मरियम? Yes, sir. हो जाएगा ना? चलिए कीजिए जरा. ठीक है, try this and I will be back in a minute. Send your answers on WhatsApp, okay? आप लोग स्ट्रक्चर बना दीजिए. नेम की चिंता अभी हमको तो नहीं है. नेमिंग हमने पढ़ा दिया आपको. नेमिंग आना चाहिए. राइट नाउ आई जस्ट वांट टू सी फाइन और नॉट. नेमिंग अगर नहीं आ रहा फिर आप लोग को तो अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना. राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू लुक एट द नेमिंग्स. ये बहुत मतलब लगभग हम लोगों ने 5-6 क्लासेस तक नेमिंग को अच्छे से पढ़ा है. उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि नेमिंग प्रैक्टिस करते रहते. एटलीस्ट जो भी हम लोगों ने बुक में मतलब नोटबुक में आपके जो भी सवाल हम लोगों ने किए उसको कम से कम करना चाहिए था. अरे यार मरियम, आपने तो स्ट्रक्चर ही गलत बनाया है. रिएक्टेंट देखिए, रिएक्टेंट ही गलत है. मरियम, Yes, sir. आप ठीक है, चलिए आप सेकंड नंबर दे दीजिए और उसके बाद लिखिए इसको. या इसको 0 नंबर दे दीजिए, है ना. मतलब मार्क्स नहीं बोल रहे. ये क्वेश्चन नंबर 0 कर दीजिए इसको आप. ठीक है, Okay. उसकी फिर 1 नंबर करके ठीक से बनाइए रिएक्टेंट एंड देन द प्रोडक्ट. According to the reactant that you have made, the product is fine, but your reactant is only wrong, है ना. तो आपने जो रिएक्टेंट बनाया उसके हिसाब से प्रोडक्ट सही है. आपने भेजा है. या करेक्ट ऋषिता. इजी ना, कोई डिफिकल्ट तो नहीं है ऋषिता? No, sir. ठीक है, ट्राई द सेकंड वन. सेकंड वन में सबसे पहले रिएक्टेंट बनाइएगा. आमना एंड खदीजा वेटिंग फॉर यू गाइस. या इवन आंसर नहीं, अगर हमको 5 सेकंड के अंदर कुछ रिप्लाई नहीं मिला देन आई विल नॉट वेट फॉर योर आंसर. आमना एंड खदीजा, आर यू सेंडिंग द आंसर्स? प्लीज टेल मी yes or no in the chat. I'll wait for 1 minute. बन रहा है. Khadija, I'm waiting for you. Are you sending the answer on my WhatsApp? 10. You have to answer yes or no in the chat. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. ठीक है, I'm not waiting for Khadija. Yes, Mariam, that is correct. Very good.
Guys, just give me 5 minutes है ना, आप लोग बाकी भाई आगे का तो आंसर भेजिए। सेकंड का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा क्या आप से? आमना, खदीजा, मरियम, निशिता। Sir, I'm done with the second one. I do not have.
नहीं नहीं, भेजिए भेजिए, आप भेजिए, आंसर भेजिए। देखिए गलतियां होंगी, है ना, डोंट वरी अबाउट दैट। आप पेन उठा के सवाल को बनाना चालू कीजिए, है ना। जब तक वो नहीं कीजिएगा तब तक बहुत दिक्कत होगी। Rishita, what happened? Not send the answer. Mariam, what happened? Sir, I don't know how to do the second one. स्ट्रक्चर भी नहीं बन रहा, स्ट्रक्चर बन रहा है या नहीं बन रहा? I made it, but I don't know if it's correct. जैसे वो आपको कैसे पता चलेगा कि सही है गलत है? तो हम बताएंगे ना, आप भेजिए तो सही, तो कैसे पता चलेगा आपको सही है गलत है? Okay, okay. ऋषिता, व्हाट अबाउट यू? ऋषित आमना, आपने नहीं भेजा आंसर अभी तक फर्स्ट वाले का? फर्स्ट वाले का भी नहीं भेजा अभी तक आमना, आपने बोला भेज रहे हैं हम। ये सामना। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इसको ना हम लोग, सेकंड कौन सा किया आपने? ये थर्ड किया है शायद आपने, है ना? थर्ड किया। Oh yeah, yeah, I did third one. थर्ड वन, हाँ ठीक, कोई बात नहीं। फिर प्रोडक्ट बनाइए। स्ट्रक्चर सही है आपका, 1 2 3 4, वन ब्यूट, ठीक है। स्ट्रक्चर इथाइल 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 इथाइल, ये सही। इथाइल इथाइल, आपने क्या बनाया देखिए। व्हाट इज द ग्रुप यू हैव अटैच्ड ऑन द सेकंड कार्बन? It is ethyl. Okay, okay, okay. इथाइल। ठीक है, इथाइल करना है। अच्छा, ये दिस इज फॉर द सेकंड वन ना, ऋषिता? ठीक है। Yes, sir. नहीं, 3 जो होगा नीचे वाला कार्बन होगा जिसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है। 3 अपने, 1 2 3 अपने ऊपर कर दिया है, वो नीचे वाला कार्बन होगा। मेक सेंस? यस ऋषिता? Yes, sir. ठीक है, 3 4 5 6 7, ठीक है। एंड देन 3 और 4 में है ना मिथाइल, तो गलत कर दिया देखिए आपने। अब 3 और 4 में मिथाइल है, आपने सेकंड में मिथाइल डाल दिया है। अब मतलब सेकंड लिख के भी उसमें मिथाइल कैसे डाल दिया? बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ऑल्सो 3 इन है, तो थर्ड कार्बन में डबल बॉन्ड होगा। आपने सेकंड और थर्ड में डबल बॉन्ड कर दिया है। ठीक है, देखिए चलिए, सेकंड वाला देखिए आप लोग। यहाँ पे हेप्ट। हेप्ट का मतलब 7 कार्बन एटम्स, 7। सो 1 2 3 4 5 6 7, 7 carbon atoms. Then 3 and 4 is having methyl. So 1 2 3, third carbon it is having CH3, carbon is having CH3. Then hept 3 in, the third carbon 1 2 3, 3 is having double bond. ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? यू हैव टू ब्रेक दिस डाउन। एक ऑप्शन इधर, दूसरा ऑप्शन इधर। 1 2 3, डबल बॉन्ड O प्लस डबल बॉन्ड। मेक सेंस? इस ऑप्शन में। Yes, sir. अब उसके बाद इथाइल ब्यूट 1 E, थर्ड वाला देखिए।
ब्यूट, दैट मीन्स 4 कार्बन, 1 2 3 4, 2 इथाइल, सेकंड कार्बन में 2 कार्बन जुड़ जाएंगे, और है ना। कैन यू सी हाउ इजी इट इज विद द बॉन्ड लाइन? ऋषिता, आपने मतलब वैसे ओपन चेन स्ट्रक्चर कितना डिफिकल्ट है यार, हमको तो बहुत डिफिकल्ट लगता है, इस वजह से आई स्पेंड टाइम, अ लॉट ऑफ टाइम फॉर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स ना। ठीक है, तो बॉन्ड लाइन का प्लीज इस्तेमाल करें, इट इज वेरी इजी। इथाइल ब्यूट 1 ई, फर्स्ट कार्बन आटम में डबल बॉन्ड, दैट्स इट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, O3 ZnH2O। ना इफ यू सी दिस कार्बन आटम ना, ये CH2 होगा, 2 बॉन्ड है तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन भी होंगे, so इट विल बी H2 कार्बन डबल बॉन्ड O प्लस, दूसरा आपके पास होगा ऑक्सीजन विद डबल बॉन्ड, ऐसे और ऐसे, लाइक दिस। मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस। नेमिंग तो आप लोगों को करनी है, नेमिंग में आप लोग कीजिएगा नेमिंग, ठीक है। फर्स्ट वाला हमने नहीं किया, फर्स्ट वाला हम कर देते हैं, डबल बॉन्ड O प्लस डबल बॉन्ड O, लाइक दिस। Then you have 1 phenyl but 1 E. Let me make some space for this structure. वन फिनाइल ब्यूट, ब्यूट मतलब 4 कार्बन आटम, 4 कार्बन आटम्स, एंड फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल लगा हुआ है, दैट मींस यू हैव बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग नहीं लिख के आप पीएच भी लिख सकते हैं, दैट इज जस्ट अ डिनोशन दैट इट इज अ बेंजीन रिंग, पीएच। एंड ब्यूट 1 ई, एंड फर्स्ट कार्बन पे ही आपके पास क्या, डबल बॉन्ड, ठीक है। सो इट विल बी लाइक दिस, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, O3 ZnH2, ठीक है। सो यू हैव पीएच कार्बन विद डबल बॉन्ड O प्लस, लाइक दिस, डबल बॉन्ड O। नेमिंग के लिए तो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्या ही बोला जाए। Now we have seen how to do रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। अगला स्टेप जो है ना, अगला स्टेप है दैट इज प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। Raise your hand once you're done, guys. आमना, खदीजा, रुशिता waiting for you. Guys, आमना and खदीजा आप लोग तो बिल्कुल पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, कैसे आप लोगों को समझ में आएगा, आई डोंट नो। एन एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस, देखिए आपको क्या हुआ है, एन एल्कीन ए, है ना, ऑन ओजोनोलिसिस, alkene A on ozonolysis give a mixture of ethanol
and pentane 3 on and pentane 3 on. अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे गिवन द प्रोडक्ट्स, हाउ यू विल मेक द एल्कीन, इट्स वेरी इजी, सिंपल है। आपको बस यहाँ पे जैसे वहां पे तोड़ा था आपने, यहाँ पे जोड़ देना है। वहां पे आपने क्या किया था, तोड़ के ऑक्सीजन लगाया। व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पे आप ऑक्सीजन हटा के जोड़ दीजिए, ठीक है। सो विल फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इथेनॉल। इथेनॉल मीन्स 2 कार्बन एटम्स, राइट? सो यू हैव 2 कार्बन एटम्स एंड अल मीन्स डबल बॉन्ड ओ, एल्डिहाइड ग्रुप, और यहाँ पे CHO, है ना। एंड पेंटेन 3 on, पेंटेन मीन्स 1 2 3 4 5, और तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ। नाउ हाउ टू ज्वाइन दिस, TC, इन दोनों को आपको ऐसे बनाना है, इस तरह से, राइट। यू जस्ट नीड टू रिमूव द ऑक्सीजन। एल्कीन कैसे बनेगा इसका, देखिए, डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, मेक सेंस इसोनोफिशियल में गाइस? क्या आपको दिख रहा है, ऑक्सीजन हट गया और दोनों चिपक गए, Yes. दिख रहा है ना। तो अब देखिए, मेन आप लोगों को देखिए, दिस पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, एल्कीन का ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस तो आसान है, आपको दिक्कत कहाँ है ये पता है? आपको दिक्कत आएगी इथेनॉल ही नहीं बन रहा है आपसे, आपको दिक्कत आएगी पेंटेन 3 on ही नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे आपके पास, अब आपको फोकस करना है, ठीक है। यू हैव टू डू द क्वेश्चन एंड वेर यू हैव टू फोकस। अब आंसर्स में ये नहीं दिखेगा कि आंसर क्या है, आपको ये देखना कि इथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, वो देखना। आई होप अभी आपने जो सवाल किया उससे आपको ये पता लग गया होगा दैट राइटिंग द प्रोडक्ट इज नॉट डिफिकल्ट, जो आपको नाम दिया उससे स्ट्रक्चर बनाने में आपको डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है। तो उसको पहले आप क्लैरिफाई कीजिएगा, क्लैरिटी लाइएगा उसके अंदर। राइट दिस डाउन, देन आई थिंक वी हैव अ फ्यू मोर। हाँ, एक और है, ये करके जरा बताइएगा, लेट मी सी कितना आप लोगों ने सीखा। हाँ, अब वही है कि स्ट्रक्चर अगर नहीं बनेगा किसी का, देन विल बी डिफिकल्ट।
अच्छा, what is the functional group in both the structures that you have made, Mariam? What is the functional group? Aldehyde and ketone. एल्डिहाइड है, कौन से मामले में एल्डिहाइड है? The first one. फर्स्ट वन में एल्डिहाइड है? क्या होता है एल्डिहाइड, बताइए, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है एल्डिहाइड का? CHO. हाइड्रोजन कहाँ है उस कार्बन में जहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है? Oh, गॉट इट? yes. तो आप लोग अटकिएगा यहीं पे बस, बाकी तो आसान है जो आपने। अच्छा, अगेन सेम थिंग भरिया, आपने जो जो स्ट्रक्चर बनाए हैं वो दोज पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स विल बी गिवन बाय ओजोनलिसिस ऑफ द एल्कीन दैट यू हैव मेड, है ना? तो आपने जो बनाया स्ट्रक्चर उसके हिसाब से एल्कीन सही है, बट आपको वो स्ट्रक्चर ही सही नहीं है। ठीक है, तो आपकी दिक्कत वहीं पे आएगी, तो आपको आईयूपैक नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं ना, रिवाइज करना पड़ेगा। Yes, sir. किसके लिए? ओजोनोलिसिस के लिए, है ना? Yes. तो ये चीज ना स्टूडेंट्स जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जितना जल्दी आप आइडेंटिफाई कर लें इस चीज को कि आपको अब जैसे ना, ये आपसे सवाल नहीं बनता अगर मान लीजिए ये वाला, ठीक है, अभी एक बात तो कह रहे हैं भाई, ये वाला सवाल नहीं बनता, आप हमसे क्या बोलते कि सर ओजोनोलिसिस नहीं आ रहा है, राइट? Yeah. बट क्या ओजोनोलिसिस में प्रॉब्लम है आपको? No. हाँ, तो अब थोड़ा सा ना आप लोग भी अपने माइंड को ट्रेन करना चालू कीजिए कि प्रॉब्लम असल में कहाँ है, वो आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। मेक सेंस मरियम? Yes, sir. ऋषिता, ऋषिता आपको समझ में आ रहा है Yes, sir. क्या? चलिए। मतलब टीचर को ना बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो अपने दो स्टूडेंट्स हु नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि 10th स्टैंडर्ड तक जिस तरह से आप लोग को पढ़ाया जाता है वहां पे ये चीज, मतलब इसके बारे में तो ध्यान ही नहीं है, ध्यान ही नहीं दिया जाता कि आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, वहां पे आप फोकस, सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब, ठीक है। बट उस चीज को थोड़ा चेंज करने की जरूरत पड़ेगी 11th और 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। 11th में आप सीखिए, 12th में आप तब तक अप्लाई करने के लिए लायक हो जाएंगे, है ना? देन यू विल अंडरस्टैंड, अच्छा ठीक है। और खास तौर से केमिस्ट्री में आई वुड से, मतलब फिजिक्स में, फिजिक्स में नॉट सो मच। फिजिक्स में इफ यू लुक एट द बोर्ड एग्जामिनेशन, वहां पे अगर न्यूमेरिकल्स आते हैं देन न्यूमेरिकल्स आर फॉर्मूला बेस्ड ओनली, राइट? सही कह रहे हैं वो, है ना? एक चैप्टर का फॉर्मूला, उसी के सवाल। डेरिवेशंस आते तो डेरिवेशन उतने ही पोर्शन में रहता है। हाँ, फिजिक्स में दिक्कत आएगी इफ यू डोंट नो वेक्टर्स, इफ यू डोंट नो इंटीग्रेशन, इफ यू डोंट नो डिफरेंशिएशन, इफ यू डोंट नो यूनिट्स। दीज बेसिक्स यू हैव टू कवर, मतलब हमेशा फॉर फिजिक्स। केमिस्ट्री में अलग अलग चीजें। चलिए कीजिए, तो ऋषिता आपका आंसर नहीं आया अभी तक? Sir, I'll send it. One second. देखिए अभी भी सही नहीं है, अभी भी सही नहीं है ना मेरे, अभी तो आपने जो एल्किन बनाया है, वो भी ठीक नहीं है। हाइड्रोजन नहीं दे रहे हैं आप, देखिए हमने यहाँ पे हाइड्रोजन दिया है, थोड़ा आप आइडेंटिफाई कीजिए, तभी ये CHO हुआ है ना, आपका हाइड्रोजन ही नहीं है। और कैसे आप कह रहे हैं कि इट इज गोइंग टू बी एल्डिहाइड? मेक सेंस मरियम? मरियम आपका Yes. हाइड्रोजन ही नहीं है ना? हाइड्रोजन डालिए। Yes. पेंटेन फ्यून तो हमने बनाया हुआ है, उसमें दिक्कत नहीं। प्रोपेनल में आपके पास जो कार्बन एटम है ना, विच इज हैविंग डबल बॉन्ड, इट शुड हैव अ हाइड्रोजन आल्सो। What happened? Send me whatever you have done. Sir, I got the propanol and
Send me whatever. Pentan. Pentane 3. Send me whatever you have to tell me. Rishta, send me whatever you have done. Yes, sir. I'm sending. हाँ करेक्ट है, स्ट्रक्चर से करेक्ट. अब ज्वाइन कर सकते हैं इन दोनों को. Sir, but they are not like at the starting. So should I join them up and down? हाँ अप एंड डाउन जैसे हमने किया था ना, ऊपर नीचे ऐसे. Oh, okay, sir. है ना, ऐसे ज्वाइन कर दीजिए. हैंड स्किल्स आप देख रहे हैं, कंसेप्चुअली आसान है. ऑक्सीजन हटाओ, डबल बॉन्ड को जोड़ दो. बट जब आप स्ट्रक्चर बनाइएगा तब आपको दिक्कत, ओ अच्छा, अब दिक्कत आ रही है, पता नहीं कैसे होगा. ठीक है, सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस इज द ओनली की हियर. हाँ अब जाके सही है. 1 2 3 4 5, अब 1 2 3 इधर हाइड्रोजन. हाँ अब सही है, वेरी गुड मरियो, करेक्ट ना. अब एक अलग मामला आएगा कि इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा. तो नाम में फिर से आप लोग अटकिएगा. बट वो तो हम नहीं पढ़ाने वाले अब. वो एक Sir, बार पढ़ा when I लिया हम. flip it upside down, will the hydrogen go to the other side? हाइड्रोजन को तो दिया था सही. I mean, किसको अपसाइड. to the left side. नहीं देखिए, बस आपको स्टार्टिंग अलग करना पड़ेगा ना. आप किसको देखिए, यू हैव मेड प्रोपेनॉल लाइक दिस. 1 2 3 कार्बन एटम, डबल बॉन्ड O एंड हाइड्रोजन हियर. ठीक है. और फिर आपने पेंटेन पेंटेन थ्रियोन को ऐसे बनाया है. ठीक है, किसको उल्टा करना चाह रहे हैं आप बताइए. Propanol. प्रोपेनॉल को आप उल्टा करना चाह रहे हैं. ठीक है, दैट मीन्स ये नीचे रहेगा, दिस विल बी बिलो. ठीक है. अब आपने ऐसे स्टार्ट किया ना इसको, उल्टा स्टार्ट कर लीजिए ऐसे. 1 2 3, और यहाँ पे हाइड्रोजन एंड डबल बॉन्ड O. दैट्स इट. Okay, sir. ठीक है, स्टार्टिंग में बस आपको उल्टा करना रहता है, नथिंग एल्स. इन दोनों को जोड़ दीजिए, हो जाएगा. सेंड द आंसर रिश्ता वंस यू डन. बस हो गया आपका. फाइन, करेक्ट है ना. आपके पास जो बनेगा दैट विल बी 1 2 3, यहाँ पे हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, लाइक दिस. दैट्स इट. ठीक है, चलिए. राइट, नेक्स्ट. फिफ्थ रिएक्शन इज एडिशन ऑफ वाटर. एडिशन ऑफ वाटर में बस आपके पास ना सी सी डबल बॉन्ड O. ठीक है. अगर हम वाटर को देखें तो वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ HOH. ठीक है. H विल बी डेल्टा पॉजिटिव और OH वाला पार्ट डेल्टा नेगेटिव होगा. सो यहाँ पे भी आपके पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स है. सो प्लस वाटर एल्कीन का इसको हाइड्रेशन बोलते हैं. वी आर एडिंग वाटर. इट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ इट हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड. यहाँ पे भी आपके पास दो प्रोडक्ट मिलेंगे. यू विल आइदर ऐड द OH इन द मिडिल कार्बन एटम, or you will add OH in the last carbon. Huh? So here we had two carbon atoms
on the double bond. That is why we are getting two products. यहाँ पे भी same thing that we as we did in HBr, the product with higher degree will be major. इसको बोलते हैं the addition is happening according to Markovnikov's rule. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. That's Yes. Mary. Yes, Okay. sir. So similarly, if we have something like this, I mean same, बिल्कुल same concept है यहाँ पे. अगर ऐसा कुछ double bond है, if you have double bond like this, plus directly I can write like this, H2O in the presence of H plus. So now since both of these carbon atoms are same, आपको बस एक product मिलेगा. OH in either in this carbon or this carbon, the compound will be same. वहाँ पे कोई difference नहीं. But if you have something like this, CH3 and a double bond here, you have H2O in the presence of H plus. You will get OH, CH3 as it is, plus everything as it is except the double bond, CH3, and OH in this carbon atom. So this will be major because higher degree, major, and this will be minor. Okay, so you write this down. Raise your hand and show them. Sir, Yeah, I didn't understand why in the second one there is only one structure. that's okay. So even if I draw another structure, no, I hope you are seeing, sir, कि एक और structure बनेगा, which will be this, right? Oh, okay. But same thing, ना? दोनों में कोई फर्क नहीं है, right? Yeah. Right? मतलब इसको ना जो भी रिएक्शन कराना है, इसको दोबारा आपको जरूर करना है. You have to write each and everything एक बार दोबारा फिर से same things. आपको ज्यादा अलग करने की जरूरत भी नहीं है. Same things. Yeah, except if your IUPAC nomenclature is good, because आपको सवाल आएगा ना तो IUPAC nomenclature के हिसाब से आता है, जैसा आपने देखा क्वेश्चंस में दिया हुआ था. So that should be perfect IUPAC nomenclature, तभी आप कोई रिएक्शन भी कर पाएंगे. Done, guys? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Mariam, done? Yes, sir. Right, next. Sixth is oxidation. In oxidation एक आपके पास होता है, we use cold aqueous dilute K2Cr, sorry, KMnO4. K2Cr is one again. ठीक है, KMnO4, it is known as Bayer's reagent. Bayer's reagent. ठीक है. Now this Bayer's reagent, it has a specific color. Do you know what is the color of KMnO4? KMnO4 देखा नहीं आपने अभी तक? टाइट्रेशन वगैरह नहीं किया आपने? नहीं. ठीक है. तो KMnO4 जो होता है ना, इट इज पर्पल टाइप का कलर होता है, मैजेंटा वायलेट इस तरह का. एंड बिकॉज इट इज डाइल्यूट एंड एक्वस, इसका लाइट वायलेट पिंकिश टाइप का कलर होता है. ठीक है. बेयर्स रिएजेंट, Bayer's reagent has light violet pinkish color. ठीक है. And on treatment with अब आप इसको ट्रीट कीजिए किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड से, है ना, जरूरी नहीं कि एल्कीन ही. On treatment with alkene and alkyne, alkene and alkyne,
the color of solution disappears and a brown sludge is formed. ठीक है, precipitate टाइप का ब्राउन स्लज इज फॉर्म्ड. Now what is the reaction? So if you have CH2 double bond CH2, any alkene for that matter, it reacts with dilute KMnO4. It will give you CH2 single bond CH2 and दोनों ही कार्बन में क्या आ जाएगा? You will have a OH group attached. ठीक है. If you have something like this and you added Bayer's reagent, आपको मिलेगा क्या? OH and OH. But important thing to note down is कि Bayer's reagent is used as a test for unsaturation. ठीक है, unsaturation का टेस्ट होता है. Bayer's reagent is used as a test for unsaturation. Got it, guys? This one, please tell me. Yes. Done. Mariam, Rashita. Yes, sir. Yes, sir. Next is देखिए, ऑक्सीडेशन में दो रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन बी पार्ट लिखेगा. The B part is acidic KMnO4, acidic KMnO4 और K2Cr2O7. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए एल्कीन्स में, अब आप लोग को थोड़ा एक चीज समझिए जरा. अगर आपके पास कार्बन और डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन में देर आर ओनली अ फ्यू थिंग्स दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन दिस कार्बन एटम. इस कार्बन के पास कुछ ही ऑप्शंस बचते हैं. इफ देयर इज अ डबल बॉन्ड ना, तो इस कार्बन के पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं? पीसी. आइदर डबल बॉन्ड है एक कार्बन के पास, या तो इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन हो जाए, या तो ये हो सकता है. द अदर पॉसिबिलिटी इज डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके पास एक हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप हो जाए. ऐसे कार्बन एक अल्काइल ग्रुप CH3 हो, चाहे C2H5 हो, या फिर तीन कार्बन का हो, वॉट एवर अल्काइल ग्रुप एंड देयर इज वन हाइड्रोजन. जो तीसरा केस हो सकता है, दैट इज दिस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, दोनों यहाँ पे क्या हो? अल्काइल ग्रुप हो. क्या ये बात आपको समझ में आई? ये सुनो अबाउट दीज पॉसिबिलिटीज. हाँ जी, बताएं. Yes, sir. पक्का समझ में आया ना? नो Yes. प्रॉब्लम हियर. ठीक है. अब देखिए एल्कीन का जो, अगर इफ द एल्कीन का एक कार्बन, दो कार्बन होते हैं ना, हम एक एक कार्बन को इंडिविजुअली लेके चल रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट. इफ लेट अस सपोज वन ऑफ द कार्बन इज हैविंग CH2 और आप एसिडिक KMnO4 वगैरह ये सारी चीजें डाल रहे हैं, देन दिस विल कन्वर्ट टू CO2. किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CO2. इफ यू हैव वन अल्काइल ग्रुप एंड वन हाइड्रोजन, अगर सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप हुआ, देन इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड. दैट मींस दिस C विल हैव अ डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R और यहाँ पे OH. बात समझ में आ रही है? सो प्लीज टेल मी गाइस. ठीक है. Sir, can you repeat the second one? देखिए इसमें क्या करना है, आपके पास कार्बन है ना, ये अल्काइल ग्रुप ऐसे ही, इस कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड O और OH लग जाएगा. यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द कार्बन. एल्कीन आएगा तब समझ में आएगा. कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर एक अल्काइल ग्रुप है तो व्हाट इट विल मेक कार्बोक्सिलिक एसिड. कैन यू सी कार्बोक्सिलिक एसिड? Yes, yes. Oh, okay. ठीक है. नाउ
इफ एल्कीन का एक कार्बन एटम, डबल बॉन्ड के एक कार्बन एटम में दो अल्काइल ग्रुप्स है, देन इट विल बिकम कीटोन. एज यू कैन सी, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है. यहाँ देखिए, यहाँ पे तो आपके पास ये तो CO2 बन गया, बट यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है. मेक सेंस? ये प्लीज टेल मी. एल्काइल ग्रुप Yes. में कोई चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है. हाइड्रोजन है उसके साथ. या तो आपको क्या मिले, या तो आपको मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड, और यू विल गेट कीटोन. ठीक है. अब एग्जांपल देखिए सर. ठीक है. चलिए, अब हाइड्रोजन देखना है आपको. दो हाइड्रोजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक हाइड्रोजन है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, जीरो हाइड्रोजन है तो कीटोन. मेक सेंस? इस वन प्लीज टेल मी. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है ना. अब बताइए, देखिए जैसे आपके पास ये एग्जांपल. नाउ दिस कार्बन एटम, कितने हाइड्रोजन है इसके पास? 1 वन हाइड्रोजन. तो क्या बनेगा इसका? ketone. Uh, um, carboxylic acid. हाँ, लिख ही देते हैं हम. इफ टू हाइड्रोजन, है ना. इफ वन हाइड्रोजन, इफ जीरो हाइड्रोजन. ठीक है. तो अब देखिए, आपको Yes. ब्रेक कर देना है, ऐसे करके ब्रेक कर दीजिएगा. और फिर यहां से C डबल बॉन्ड, दो कार्बन बचे ना, डबल बॉन्ड को आपने ब्रेक कर दिया था ऐसे करके, ये दो कार्बन, तो CH3COOH कर दिया आपने. कोई दिक्कत तो नहीं है? No. पता नहीं ना. प्लस. अच्छा, अब इसमें बताइए, हाउ मेनी हाइड्रोजन हियर इन दिस कार्बन एटम? 0 तो क्या बनेगा इसका? ketone. कीटोन. कैसे बनेगा? विल हैव, इस तरह से है ना. आई होप उतनी डिफिकल्टी नहीं होगी, थोड़ा सा अरेंज्ड अलग से है, लेकिन मेक सेंस. ये सुनो. Yes, sir. ठीक है. बी पार्ट देखिए. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव समथिंग लाइक दिस. ये मान लीजिए इस तरह से आपकी बात ये हुआ. बताइए, व्हाट अबाउट दिस कार्बन एटम? कितने हाइड्रोजन इसके पास? 0 जीरो. तो इसका क्या बन जाएगा? ketone. कीटोन. और इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 2 क्या बन जाएगा उसका? carbon dioxide. आसान है. Yeah. Sir, can you scroll up? I didn't try. हाँ, ठीक है, ठीक है. So there's nothing for 3H. अरे भाई, क्या बोल दिया आपने? कार्बन डबल बॉन्ड और तीन हाइड्रोजन रहेंगे. Oh, okay, never mind. ऐसे हमको हार्ट अटैक आ जाएगा कभी रिश्ता. Sorry, sir. ओके, हम फिर आपने सॉरी का, लेकिन क्या करेंगे? ऐसे सवाल कीजिएगा आप तो. एक हमारे पास ना मास्टर्स में एक मैम थी, शी वाज राधा जयरा. मतलब बहुत इन्फ्लुएंस किया उन्होंने. सो कई बार जब उनसे सवाल करते थे ना, तो वो पूछती थी, आप खुद सवाल करो अपने आप से, ये फिर जवाब दो. सो आई थिंक दिस वाज वन ऑफ दोज पॉइंट्स रिशिता, है ना. आई शुड हैव टोल्ड यू कि आप ये सवाल खुद से कीजिए. तीन हाइड्रोजन होंगे तो क्या होगा?
चलिए एक सवाल हम देते हैं, वो खींचिए आप लोग। अच्छा मान लीजिए कुछ इस तरह से है, तो क्या होगा? ये हम कर देते हैं आपको पीएम, देखिए जरा। यहाँ KMnO4, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। देख लीजिए जरा, इफ यू आर राइटिंग यू कैन स्टॉप फॉर अ व्हाइल, है ना। बेसिकली आपको ना ये डबल बॉन्ड तो ब्रेक करना पड़ेगा पहले। इस कार्बन के लिए बताइए क्या हो जाएगा? दिस विल बी कन्वर्टेड टू, कितने हाइड्रोजन हैं यहाँ पे? Ketone. हाँ, इसमें 0 हाइड्रोजन, राइट? Yeah. एंड व्हाट अबाउट दिस वन? One. 1 हाइड्रोजन, Carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। और ये फिर आपको ध्यान होगा कि ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, मेक सेंस। Yes. अब जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो आपको एक रिंग चेन मिलेगा रिशिता। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना, यहाँ पे पहली बार ऐसा हो रहा है रिंग से चेन बन रहा है ना, जिसके लिए आप बहुत इंतजार कर रहे थे। यूज टू ऑलवेज राइट ना रिंग से चेन। तो ये देख लीजिए Yes. पहला एग्जाम्पल आ गया, 1 2 3 4 5 6। यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा ना, यू टेक जो भी एक साथ, क्योंकि विदाउट रेजिंग द पेन अप आई कैन ट्रेस ऑल ऑफ दीज ना, है ना। तो इसका मतलब दीज आर अ सिंगल चेन। तो 6 कार्बन आटम का आपके पास चेन मिलेगा, 1 2 3 4 5 6। नाउ दिस सेकेंड कार्बन आटम में 0 हाइड्रोजन था, तो सेकेंड कार्बन आटम क्या बन जाएगा? कीटोन। और 6 कार्बन आटम बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। मेक सेंस? Yes, sir. शायद ही ऐसा सवाल आए, बट अच्छा लगा सवाल। रिंग से चेन अच्छा लगा श्वेता आपको? Yes, sir. Pop this down. Raise your hand once you're done.